In last lecture, what we have completed was about respiration and circulation. That chapter was completed. Now we'll start with the new chapter, that is control and coordination. In this chapter, we will see neural control and chemical control. Both the controls we will see. Neural control means that will be involving new nervous system of our body, and chemical control means they will include like different types of glands, hormones, etc., etc. Okay, so in, in there are two types of control mechanism in human system or human body. The first system is nervous control and the second system is chemical control. Okay, nervous control, however, it is rapid and it takes place by electrical signals called as nerve impulses. Now here impulse, it is nothing but any significant change in terms of electrical signal. Any term in terms of any change in terms of electrical signal will imply as impulse. Okay, nervous impulse travels in specific direction only. Okay, uh, specific direction means like you are touching the table, so that your impulse is traveling from your hand to your brain, that you are touching this table. Okay, so nervous system in animals, like different there are certain animals which have very low complexity, animals which have very high complexity. Okay, but in lower animals like sponges, in sponges there is a lack of neuron. They do not contain neuron, but they contain a group of cells. They contains a group of cell, but they do not contain neuron. Okay, how they manage to carry out the different processes? They have something we call division of labor. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हर स्पेसिफिक सेल को, कोई भी एक सेल को स्पेसिफिक काम दे दिया जाएगा, दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर. सो स्पॉन्जेस हैव डिवीजन ऑफ लेबर बट दे लैक्स द न्यूरॉन. Second, in hydra all the neurons look similar. All the neurons are similar and they are linked to one another by forming a network which is called as plexus. एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेक्सस कहते हैं, बिटवीन epidermis and gastrodermis. These are the two layers, epidermis and gastrodermis. इसके बीच में नेटवर्क फॉर्म करता है. तो इन हाइड्रा there are presence of neuron. In planaria, in platyhelminths like planaria has two nerve cords. It has two nerve cord ventrally positioned. Ventral side में वो position रहती है, that converge to form a rudimentary or you can say U-shaped brain. Rudimentary का मतलब होता है it looks like brain, but it is not exactly same as brain. It is looking like, or you can say it look like brain, or you can say cephalic ganglion. You can say cephalic ganglion. Planaria have ventral nerve cord, which have ventral nerve cord. Ventral nerve cord interconnected to transfer nerve. It is interconnected to transfer nerve, or you can say commissure in ladder like manner. सीढ़ी कैसे होती है उस तरीके से ये एक दूसरे में कनेक्टेड रहते हैं. कौन कौन कनेक्टेड रहेगा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड और ट्रांसफर नर्व. ट्रांसफर नर्व, why it is known as transfer? Because it transfer the impulse, that's why it is known as transverse nerve. Okay, next we will start nervous system in humans. Nervous tissue, it is ectodermal in origin. That means this nervous system in humans, it is derived from ectoderm. It is derived from ectoderm. It is divided into three main parts. The first part, actually it is two main part. It is two main part, but we are for the sake of understanding we are dividing here three. Okay, so the first part is central nervous system, which is called as CNS. The second part is peripheral nervous system, that is PNS, and the third part, which is autonomic nervous system, that is ANS. Okay, central nervous system includes brain and spinal cord. Here it is brain and here it is yellow colored spinal cord. Okay, जिसको हम लोग उर्दू में हराम मगज की बत्ती कहते हैं, तो that is spinal cord. Peripheral nervous system is comprises of all the nerve. अब यहाँ पे nerve लिखा हुआ है. What is nerve? Okay, nerve जो अभी इसके बाद वाले स्लाइड में आएगा, what is nerve? Okay, so autonomic nervous system. Here nervous system comprises of three: central nervous system, peripheral nervous system and
Autonomic nervous system. Central nervous system contains brain, spinal cord. Peripheral nervous system contains cranial nerve and spinal nerve. Cranial nerves का मतलब होता है जो क्रेनियम से निकलेगी, और जो स्पाइनल नर्व्स का मतलब होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी वो नर्व्स. Autonomic nervous system, however, it is divided into two categories: sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Okay. Nervous tissue, that is tissue. What is tissue? Tissue is nothing but a group of cells. Tissue is nothing but a group of cells. So this nervous tissue, this neural tissue consists of two types of cells. तो ये जो टिश्यू है ये किन किन टाइप से बना है, कौन सी टाइप से बना है? दो टाइप से बना हुआ है. Two types of cells. The first one is known as neuron and the second type of cell is known as neuroglial cell or glial cells. Neurons. अब नर्व किसको कहते हैं? यहाँ पे हम लोगों ने देखा नर्व इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ एक्सॉन. नर्व इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ एक्सॉन. हियर अ बंडल ऑफ एक्सॉन. बंडल ऑफ एक्सॉन. एक्सॉन क्या है? दिस इज अ न्यूरॉन. ये एक जो यहाँ पे जो फिगर, यहाँ पे जो पिक्चर बनी है ये है न्यूरॉन के. ये न्यूरॉन है. अब न्यूरॉन के अंदर देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. न्यूरॉन के अंदर देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. ये हिस्सा कहलाता है साइटॉन और सेल बॉडी. ये हिस्सा क्या कहलाता है? साइटॉन और सेल बॉडी. हियर इट इज रिटन. उसके अंदर से देयर आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर अराइजिंग. ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है ये स्ट्रक्चर कहलाता है डेंड्राइट्स. ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स. डेंड्रॉन इस एक्चुअल ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं ट्री ब्रांचिंग को कहते हैं डेंड्रॉन. इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन. यू कैन कॉल इट डेंड्रॉन. ओके. हियर सेल बॉडी इज कंटिन्यूड टिल द एंड. हियर ओके. सो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा कहलाता है एक्सॉन. ये हिस्सा क्या कहलाता है? एक्सॉन. एक्सॉन इज अ लॉन्ग प्रोसेस एक्सटेंड फ्रॉम साइटॉन. देखो एक्सटेंड, ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है? साइटॉन से एक्सटेंड हो रहा है. ये प्रोसेस क्या है? लॉन्ग प्रोसेस है और ये क्या कहलाता है? एक्सॉन. अब ऐसे कई सारे एक्सॉन फाइबर को मैं एक शीट को अगर मैं लपेट देता हूँ उसके अंदर, तो वो जो लपटा हुआ हिस्सा बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका नर्व कहलाएगा. देयर आर मेनी बंडल्स और यू कैन से देयर आर मेनी यूनिट्स ऑफ एक्सॉन विच आर tightly together, packed tightly together, that will be known as your nerve. So nerve, ये नर्व तीन तरीके की हो सकती है. पहली जो टाइप है वो है सेंसरी नर्व. कैसी है? सेंसरी नर्व. दूसरी है मोटार नर्व और तीसरी है मिक्स्ड, यानी बोथ सेंसरी प्लस मोटार प्लस मिक्स्ड. ओके. तो सेंसरी का मतलब सेंस करने वाली, दैट विल गिव अ सेंसेशन. ओके. जैसे अगर आप टेबल छू रहे हो तो ये सेंसेशन है कि दैट यू आर टचिंग द टेबल. तो वो जो नर्व काम कर रही है वो सेंसरी नर्व है. ओके. लेकिन ये टेबल है कब पता चला आपको? जब वो सिग्नल आपके ब्रेन में गए और आपके ब्रेन ने आपको स्टिमुलस दिया, आपके ब्रेन ने आपको बताया कि हाँ ये टेबल है. तो वो जो इम्पल्स ब्रेन से हाथ तक आया है, दैट यू आर टचिंग द टेबल, वो नर्व कहलाएगी मोटार नर्व. ठीक है. तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, एक तरफ सेंसरी एक तरफ मोटार. लेकिन मिक्स के अंदर दोनों टाइप होता है, एक सेंसरी भी होता है और मोटार भी होता है. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद द न्यूरॉन. न्यूरॉन्स, दीज आर नथिंग बट दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच कैन डिटेक्ट और रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुला. न्यूरॉन्स कैसे हैं? न्यूरॉन क्या है? एक्चुअली न्यूरॉन इज द structural and functional unit of your nervous system. Neuron is a type of cells which forms structural and functional unit of your nervous system. So these are specialized cells which can detect, receive and transmit stimuli. Stimuli का मतलब होता है कि कोई भी external change या internal change environment के अंदर हो और आप उसको डिटेक्ट कर लो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज यूर स्टिमुला और स्टिमुलस. ओके. नेक्स्ट, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर न्यूरल सिस्टम. न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक एंड हैज थ्री पार्ट्स. सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है. उसके बाद सेल बॉडी में देर आर ब्रांचिंग जिसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स. यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं.
these are dendroids, and there is a continue and long process from the cell body which is known as axon. So ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं दैट मीन्स अब ये एक न्यूरॉन हो गया, तो न्यूरॉन का जहाँ पर एक एक्सॉन यहाँ पे खत्म हुआ है तो दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन इससे कनेक्टेड रहेगा। तो वन न्यूरॉन is connected with axon and the another neuron which is connected to that axon will be dendroid. So dendroid and axons are jointed together, or you can say they form a connection, जिसको हम लोग कहते हैं synapse। वो आगे की तरफ आएगा कि that how these two neurons are connected. So this is a single neuron and there are many neurons which are connected to each other for the passing of impulses. So cyton contains nucleus। साइटोन के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, अंदर जो लिक्विड कंटेंट है दैट विल बी साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ओके, तो अदर ऑर्गेनेल्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। साइटोप्लाज्म इट कंटेन्स नेसल्स ग्रैन्यूल, देयर आर सम ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड। हियर यू कैन सी ब्लैक डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स are seen here. These are Nissls granule, and these Nissl granules are nothing but they are the pieces of ER. ER means endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पीसेस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल, जो कि कहाँ मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो डेंड्रॉइड्स और यू कैन से डेंड्रॉन शॉर्ट ब्रांचेस फ्रॉम द साइटोन। ये जो ब्रांच साइटोन से निकल रही है ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं, डेंड्रॉन्स और dendrites। And as already you know, axon is a long process which extends from cyton body. Okay, dendrites collects and transmit the impulse towards cyton। अब ये डेंड्रॉन जो है ये इम्पल्स को यहाँ से रिसीव करता है और यहाँ से रिसीव करने के बाद वो आगे की तरफ भेजता है किसको, सेल बॉडी को। ओके, जब सेल बॉडी को भेजता है तो ये सेल बॉडी से ये सिग्नल होते हुए एक्सॉन में आता है, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में, और एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे नर्व फाइबर के अंदर, और यू कैन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर दो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं, पहला न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से जहां पे कनेक्ट होता है, वैसे कनेक्शन को कहते हैं सिनेप्स। वैसा कनेक्शन क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, ये होता है सिनेप्स। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये हिस्सा इलाज करके बताया गया, ये होता है सिनेप्स। ओके, एक न्यूरॉन है उसका एक्सॉन एंड यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन एंड यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ जो ये हिस्सा जो है ये हिस्सा कहलाता है आपका सिनेप्स। ये हिस्सा क्या कहलाएगा, सिनेप्स कहलाएगा। ओके, साइटोन्स आर जनरली फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। साइटोन्स हमेशा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही रहेंगे और बाकी जो बाहर का हिस्सा एक्सॉन निकला हुआ रहेगा वो थ्रू आउट लेंथ रहेगा। Small group of cell bodies are found inside the white matter which is known as basal nuclei. Basal nuclei is also present inside your brain. Bundle of axon can be covered by only neurolemma cells. ओके, ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। अब नर्व जो होती है या एक्सॉन जो होता है वो एक्सॉन होता है दो तरीके का, आइदर इट इज मेड्यूलेटेड और इट इज नॉन मेड्यूलेटेड। आइदर इट इज मेड्यूलेटेड here, मेड्यूलेटेड, और इट इज नॉन मेड्यूलेटेड। अब मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सॉन जो न्यूरोलेमा इज अ लेयर, इट इज अ लेयर अराउंड द एक्सॉन। यहाँ पर पूरी लेयर जो है वो न्यूरोलेमा है। अगर एक्सॉन सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलेमा से कवर्ड है तो वो एक्सॉन नॉन मेड्यूलेटेड नर्व, और इसका एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व। ओके, यहाँ पर अगर एक्सॉन सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलेमा से कवर्ड है तो दैट विल बी नॉन माइड्यूलेटेड नर्व फाइबर। अगर एक्सॉन न्यूरोलेमा प्लस माइलिन शीथ दोनों से कवर्ड है तो ऐसे नर्व को और ऐसे एक्सॉन को कहेंगे मेड्यूलेटेड नर्व। ऐसे नर्व को हम लोग क्या कहेंगे, मेड्यूलेटेड नर्व। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ये जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, जो एक्सॉन है और ये जो यहाँ पर जो
पर्पल कलर का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पर्पल कलर का हिस्सा है माइलिन शीथ। अगर ये हिस्सा प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएगा या फिर मेडुलेटेड न्यूरॉन कहलाएगा। अगर ये पर्पल हिस्सा प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन मेडुलेटेड शीथ, और यू कैन से नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इज 50 टाइम्स फास्टर इन मेडुलेटेड। जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट रहेगी वहाँ पर कंडक्शन 50 टाइम्स फास्टर होगा बनिस्बत किसके, नॉन मेडुलेटेड फाइबर के। एंड नर्व इज कवर्ड बाय अ 3 लेयर, और जो नर्व फाइबर होता है वो 3 लेयर से कवर्ड रहता है, दैट इज एंडोन्यूरियम। यहाँ पे आप अगर देखें तो दिस इज एंडोन्यूरियम। पेरीन्यूरियम, एंडोन्यूरियम को कवर करता है पेरीन्यूरियम यहाँ पर, एंड पेरीन्यूरियम को कौन कवर करेगा, ईपीन्यूरियम। ठीक है, ये एक नर्व फाइबर है, सिंगल नर्व फाइबर, दैट इज सिंगल एक्सॉन। ये एक एक्सॉन, ये दूसरा एक्सॉन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पांचों का एक बंडल बना दिया गया। अब ये पांचों का एक बंडल क्या कहलाया, ये कहलाया नर्व। ओके, सो दिस नर्व इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम एंड ईपीन्यूरियम।